So we are going to do the management of the public enterprise. This is the topic which is given in your syllabus. First lesson for this, first class for this, and we will be continuing this for 2-3 sessions until and unless we cover all the topics. Now, what we are going to study in this topic, few things we would be discussing first कि हम लोग इसमें पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है? तो public management of public enterprise. So the topics that we are going to study here is public enterprise and overview, public enterprise accountability and governance, public enterprise performance and evaluation, और इनके जो सब पॉइंट्स हैं ये सब हमें कवर करने हैं. Organization and management, privatization and disinvestment, and case studies, some of them related to it, recent reforms, industrial relation in public enterprise. Then corporate social responsibility in the public enterprise. ये सारे टॉपिक्स हम हमारे कोर्स के हिसाब से इनको कवर करेंगे. So the thing that we are going to start today is the first one, public enterprise overview or the introduction, that is the concept and policy. ठीक है? Now, the term is management of the public enterprise. Let's first understand what is this public enterprise. क्या मतलब है इसका मतलब? Understand. इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया is considered to have a mixed economy. Mixed economy का मतलब क्या? यहां पे प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है, और रैदर अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड भी है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी है. तो private are the private industries which are owned by the private owners, the businesses which are owned by the private owners. जो चीज हमें पढ़नी है that is the public enterprise. Public enterprise in general terms means one business, any business, it can be anything, any industry, any business, which is owned, controlled, managed, financed by government, either by central government, either the state government or the local authority. वो सारे बिजनेसेस जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट का रोल होगा, आइदर उनको ओन करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, कंट्रोल करते हैं या फाइनेंस करते हैं, ऐसे सारे बिजनेसेस को हम क्या कहेंगे? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और सिंपली पब्लिक एंटरप्राइजेस. Clear? And all these undertakings or the establishment which are under the central government, state government or local government, they all are called as the public sector enterprise. ठीक है? ये तो हो गया सिंपल डेफिनेशन. अब इसकी जरूरत क्यों हुई, ये कैसे एग्जिस्टेंस में आया, इसकी हिस्ट्री भी मैं आपको समझाऊंगी. हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता है, बट हाँ, ये इवोल्यूशन इसका कैसे हुआ है ये जानना जरूरी है, और क्यों हमारे लिए पब्लिक एंटरप्राइज को समझना जरूरी है. तो पहले तो एक लाइन या डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में बी डिफाइंड एज एनी कमर्शियल और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ओन्ड, managed by government with a view to maximize social welfare and uphold the public interest. Public enterprise consists of nationalized private sector enterprises such as banks, life insurance, Corporation of India, the new enterprises set up by the government such as Hindustan Machine Tools, Gas Authority, State Trading Corporation and so on. ये सब क्या है? ये सब हमारी पब्लिक एंटरप्राइजेस है. अब थोड़ा सा ना इसको समझते हैं. ये जो लाइन लिखी हुई है ना, those commercial and industrial undertaking owned, managed by the government with a view of maximizing the social welfare and uphold the public interest. Let's understand this. Now, in India, थोड़ा सा पीछे चलते हैं हम. By 19th century, so as in we were already under the British, so we were British, under the British Raj, and industrialization in India grew under the British Raj only, British era. So by 19th century, we had huge industries. So grew in British Raj, इसका मतलब यहाँ पे है the upliftment, or rather you can say the extreme level of जो industrialization reach होनी थी,
that was in 19th century. And with industrialization there was utmost exploitation भी हो रहा था. Why? क्यों था? ये इंडस्ट्रीज जो ग्रो हुई थी इंडिया में, दे वेयर अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल एंड दे ऑल वेयर वर्किंग फॉर द व्हाट? बेनिफिट ऑफ द ब्रिटिश. किसके लिए? ब्रिटिश एम्प्लॉयर्स के लिए बेनिफिट कर के लिए वो बनी गई थी. जो इंडिया में जो बिजनेस हो रहा था वो इंडियंस को बेनिफिट नहीं कर रहा था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बेनिफिट कर रहा था, ब्रिटिश को. ठीक है. और ये जो इंडस्ट्रीज थी ये लेजर फेयर कंसेप्ट पे काम कर रही थी. लेजर फेयर कंसेप्ट यानी कहीं से भी गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं था. गवर्नमेंट हैज नो रोल प्ले, सब कुछ प्राइवेट था. जितना जिस इंडस्ट्री का मन कर रहा है, जिस एम्प्लॉयर का मन कर रहा है, मन मुताबिक चार्ज अपने काम करवा रहे हैं, एम्प्लॉयज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, टाइमली पेमेंट नहीं कर रहे हैं और ये सारी चीजें. ठीक है. सो एक्सप्लॉइटेशन वाज हाई. लेजर फेयर था यानी कोई भी गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं, कोई रूल्स लॉ रेगुलेशन नहीं. क्या हुआ? एक्सप्लॉइटेशन. एंड व्हेन द एक्सप्लॉइटेशन वाज वेरी हाई इट लेड टू द प्रोटेस्ट. प्रोटेस्ट शुरू हुआ, एजिटेशन शुरू हुआ, ट्रेड यूनियंस बने, फिर उनके उसके बाद में वॉर हुए, वर्ल्ड वॉर भी हुए. राइट. दिस अल्टीमेटली क्रिएटेड व्हाट? इनजस्टिस. इससे क्या हुआ? इनजस्टिस हुआ. बट व्हेन आईएलओ वाज फॉर्म्ड, जब वर्ल्ड वॉर शांत हो गए, आईएलओ का फॉर्मेशन हुआ जो सोशल जस्टिस लाने की बात की जिसने, देन पीपल रियलाइज कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं दे नीड टू वर्क ऑन सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस यानी कहीं ना कहीं हमें एम्प्लॉयज का भी मत जानना जरूरी है, उनको भी समझना जरूरी है. जब ये बात आई एम्प्लॉयज का, वर्कर्स का, पब्लिक का इंटरेस्ट जानना जरूरी है, पब्लिक एंटरप्राइज पिक्चर में आया. अब पब्लिक एंटरप्राइज किस तरीके से पिक्चर में आया? गवर्नमेंट के थ्रू. इन इंडिया गवर्नमेंट स्टार्टेड इंटरफियरिंग after the few laws like गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. ठीक है. फिर इंडिपेंडेंस के बाद में बहुत सारे लॉज आए जिसके अंदर गवर्नमेंट इंटरवेन करने लगी, इंटरफियर करने लगी. क्यों? क्योंकि हमने देखा कि प्राइवेटाइजेशन, लेजर फेयर में क्या हो रहा था? एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था. उसी एक्सप्लॉइटेशन को रोकने के लिए और मैक्सिमम सोशल जस्टिस और सोशल वेलफेयर को लाने के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट, आम लोगों के इंटरेस्ट में ये इंडस्ट्रीज को काम करना चाहिए, इसलिए पब्लिक एंटरप्राइज का फॉर्मेशन हुआ. तो सरकार ने अलग अलग इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पॉलिसीज के थ्रू या इंडस्ट्रियल पॉलिसी के थ्रू अलग अलग तरीके की पॉलिसीज लाई जहां पे पब्लिक एंटरप्राइज का कंट्रोल बढ़ा. गवर्नमेंट ने अपना कंट्रोल लाना शुरू किया. जिस पॉलिसी के तहत, उन पॉलिसीज के तहत जहां पे वर्कर्स का, जैसे 19 इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1946, वो रिजोल्यूशन था जहां पे गवर्नमेंट ने वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की बात करी थी. यानी वर्कर्स को भी पार्टिसिपेट करवाना चाहिए डिसीजन मेकिंग में. फिर उसके बाद में गवर्नमेंट नंबर ऑफ पॉलिसीज के साथ में आई कि किसी भी अगर प्राइवेट सेक्टर को कोई भी बिजनेस करना है तो गवर्नमेंट का शेयर इतना होगा, उसे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट में ये कंसिडरेशन को फॉलो करना पड़ेगा. इस तरीके से पब्लिक एंटरप्राइज का कंट्रोल बढ़ता गया. ठीक है. तो ये तो हो गया हमारा कंसेप्ट, हमारी बैकग्राउंड कि ये पब्लिक एंटरप्राइज का इवोल्यूशन क्यों हुआ. तो हमारा जो वो प्राइवेटाइजेशन है, लेजर फेयर कंट्रोल सिस्टम था, उसको हटाने के लिए. ठीक है. कुछ पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए. एंटरप्राइजेस which where union, state or territorial government owns 51% or more of the share capital, these are called as public sector enterprise. इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? owned, managed and controlled by government, aimed at maximizing social welfare and public interest. commercial nature क्या होता है? involves commercial ventures where user fee are charged for services rendered.
ठीक है, हम बेसिकली कमर्शियलाइजेशन की बात करते हैं, जहां पे आप जो भी सर्विसेज यूज करेंगे उसके लिए यू वुड बी चार्ज। लीगल डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। लीगल डेफिनेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज इज गिवन वेयर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि पब्लिक एंटरप्राइज इज डिफाइंड अंडर विच लॉ, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 45 और सब सेक्शन 45 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। What it is, क्या होता है पब्लिक एंटरप्राइज? अ गवर्नमेंट कंपनीज वेयर 51% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल, यानी किसी भी एक इंडस्ट्री में या कंपनी में जहां पे 51% शेयर्ड कैपिटल इज आइदर हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर, या फिर इंक्लूड सब्सिडरीज ऑफ सच गवर्नमेंट कंपनीज, इनको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बताया नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन पॉलिसीज आई, उसी नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पॉलिसीज आई, और उसी के अंतर्गत, उन पॉलिसीज के अंतर्गत ही नंबर ऑफ सेक्टर्स को केवल और केवल गवर्नमेंट के लिए रिजर्व किया गया। सो विच ऑल सेक्टर्स हैव बीन रिजर्व्ड ओनली फॉर पब्लिक, only for the government: railway, atomic energy, explosive material. Here these private players are not allowed. ठीक है, the definition given by NN Malya: public enterprise are autonomous, semi-autonomous corporation established, owned and controlled by state, engaged in industrial and commercial activities. ठीक है, इंडस्ट्रियल हम यूजुअली मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्शन में डील करता है। कमर्शियल हम बात करेंगे सर्विसेज से और ऑपरेशनल एक्टिविटीज से। ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ पब्लिक सेक्टर्स इन इंडिया, मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया कि किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, किस तरीके से हम पब्लिक सेक्टर में ग्रो किए हैं, क्या रीजंस थे। अब थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि ईयर वाइज, तो अगर आपको कभी भी कोई भी की फीचर पूछा गया कि किस पीरियड का वो की फीचर था, तो आपको पता होना चाहिए। फेज 1 फाउंडेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर 1950s एंड 70s। 1950s और 70s में हमारी पब्लिक सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया 1947 के पहले क्या चल रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पीक पे था, एक्सप्लॉइटेशन था, जहां पे ब्रिटिश के लिए ही सारी इंडस्ट्रीज काम कर रही थी। ये तो हमारी आजादी या उस वक्त 47 या 48 के दौरान जब लॉज आए तब पब्लिक सेक्टर की ग्रोथ हुई, या जब हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशंस आए हमारे 46 में 48 में, तब चीजें बदली। सो 1950s और 70s के टाइम पे फोकस ऑन बिल्डिंग द स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस। हियर मेन फोकस वाज टू ग्रो इंडस्ट्रीज, एंड इस दौरान ये 50s का है, यानी 46-48 की जब पॉलिसीज आई थी हमारी इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन पॉलिसीज, उस दौरान इंडिया को एक मिक्स्ड इकोनॉमी डिक्लेयर किया गया। सो हियर इंडियन economy was declared to be mixed economy. It means both public and private sector have a role. Both government and private players would be playing an important role in development of Indian economy. ठीक है, creation of indigenous capital goods sector as a private sector was weak. The state stepped ahead into drive industrial growth and self efficiency. Private sector में India was still lacking behind, and there was too much of freedom. So when there was too much of freedom, all profit goes to the employer. जब बहुत ज्यादा फ्रीडम थी तो कंट्री की तो ग्रो नहीं हो रही, इकोनॉमी का ग्रो नहीं हो रहा, सारा प्रॉफिट एम्प्लॉयर के पास। सो इन ऑर्डर टू ग्रो द इकोनॉमी, गवर्नमेंट केम इनटू द एक्शन। फेज 2 expansion and nationalization 70s and 80s. Now here public, maximum of the sectors came into public control. ज्यादा से ज्यादा सेक्टर क्या हो गई, पब्लिक सेक्टर्स यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल आई। पब्लिक सेक्टर सीन एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन नेशनलाइजेशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज, यानी एट द नेशनल लेवल। यहां पे सिंपल सा इसका मतलब है कि हमने वो टर्म्स एंड कंडीशंस, वो यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने की कोशिश करी जो नेशनल लेवल पे एक्सेप्टेबल है
एप्लीकेबल है. सो इन ऑर्डर टू ब्रिंग दैट प्रॉपर नॉर्म्स, क्या हो रहा था अभी तक के कि अगर कोई इंडस्ट्रीज किसी स्टेट में है, किसी लोकल एरिया में है, वो वहां तक ही सीमित है, उसके अपने रूल्स हैं. नेशनलाइजेशन हेल्प्ड ऑल अराउंड, ऑल ओवर द इंडिया टू कम अप एट दी वन पेस, एक ही लेवल पे लाके एक ही तरीके के नॉर्म्स को फॉलो करेंगे. फोकस ऑन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन एंड सेल्फ रिलायंस, यहां पे वो टाइम पीरियड था जहां पे एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रोल आया कि फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आएगा. इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग की टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया, दैट इफ यू वांट टू रन अ इंडस्ट्री इन, मतलब अगर आपको कोई इंडस्ट्री एस्टेब्लिशमेंट चलानी है किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, तो आपको लाइसेंस होना जरूरी है, आपके पास वो लाइसेंस होगा. उस लाइसेंस के भी कंडीशंस आए थे, बेसिस ऑफ योर आपका टर्नओवर क्या है, आप किससे डील कर रहे हैं. एनआरटीपी एक्ट आया जो कि नंबर ऑफ लाइसेंसिंग से रिलेटेड कंडीशंस को लेकर आया. दिस रेगुलेटेड पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ सेक्टर. हाई टैरिफ ऑन इंपोर्ट, अगर आप कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं उस पर हाई टैरिफ लगाया गया इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हो. देन लिबरलाइजेशन एंड द रिफॉर्म, एक टाइम पीरियड आया जहां पे चीजें लिबरलाइजेशन या प्राइवेटाइजेशन पे फोकस ज्यादा बढ़ गया. क्यों? ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन मतलब क्रॉसिंग द बाउंड्रीज हुआ. वी स्टार्टेड क्रॉसिंग द बाउंड्रीज एंड फॉर गेटिंग दैट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर बेटर ग्रोथ, प्राइवेटाइजेशन ऑल्सो इंक्लूड, लिबरल हो गए. अब हमने जो इसके पहले जो हमने पॉलिसीज बनाई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज या इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसीज जो बहुत स्ट्रिक्ट थी, उनको थोड़ा सा लिबरल किया गया ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा इंक्रीज हो, प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज हुआ, हम ग्लोबल हुए. बट हाँ, हर चीज के नुकसान और फायदे होते हैं. ग्लोबलाइजेशन के भी बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर्स को हायर करना शुरू किया गया. सो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स वेर देयर, अब उनके साथ में एक्सप्लॉइटेशन हुआ. एज अ रिजल्ट कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आया, ठीक है, तो हम और गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट हो गए. So aimed at improving the efficiency, reducing the fiscal deficit, privatization, disinvestment, sector reserve for public sector were gradually reduced. Privatization है ना, तो अब यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज को अलाउ किया गया. Competition introduced in sector where PSUs had monopoly. Like example दे रही हूँ मैं अभी, रेलवे में now privatization. Why government have brought the privatization of bank? या why government have brought the privatization of this railways facilities in? क्यों? ताकि डेवलपमेंट हो. Public enterprises encouraged to raise the fund from the capital market and getting the listed into the stock exchange. तो हमारे 3 बेसिक फेज हैं जो हमने ग्रोथ देखी पब्लिक एंटरप्राइज की इन हमारे कंट्री के अंदर. ठीक है, अब why there was need for public sector enterprise and reforms, क्या जरूरत थी, क्यों लानी पड़ी रिफॉर्म्स, यानी इनसे रिलेटेड लॉज बनाने की क्या जरूरत पड़ी, रूल्स रेगुलेशंस क्यों बनाने पड़ा. हम पब्लिक सेक्टर में डील कर रहे थे ना, वी वर डीलिंग इनटू इट, गवर्नमेंट वाज देयर, व्हाई देयर वर नीड टू ब्रिंग सम रिफॉर्म्स. नाउ the need for the public enterprise was declining performance of public sector enterprises over the year. We were dealing into the things. We now also we have the government offices. हम हैं, हमारे पास में है ना, लेकिन performance wise somewhere the government offices are not that up to that mark. Similarly, इसी तरीके से बहुत सारे reasons होते हैं. Corruption, no proper rules and regulation, no strictness. The public enterprises were declining. ठीक है, studies shows that PSCs have failed to achieve the desired objective. कौन से ऑब्जेक्टिव? सोशल वेलफेयर ऑफ जनरल पब्लिक. वो इंटरेस्ट तो पूरा ही नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठे एम्प्लॉय ही अपना प्रॉफिट ले रहे हैं, कुछ ना कुछ घपला हो रहा है, राइट. So reforms were needed to enhance their capacity for the economic and social development. Globally, public enterprise were restructured. Now, हमने क्या किया, हमने पब्लिक एंटरप्राइज बनाए, हमने इंडस्ट्रीज बनाई जो कंप्लीटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, लेकिन क्या वो इंटरनेशनल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच कर रही है? क्या हम उस लेवल तक ग्रो कर रहे थे? नहीं.
So in India, this restructuring has not received enough attention. In सब reasons की वजह से there was necessity to bring up different laws. ठीक है? Now, when you are bringing any public reform, any law, rule, regulation, the few prerequisites are important. इनको समझना जरूरी है. First, political will. Political, very very important. Government जो एक्टिव है या ऑपोजिशन में बैठी है, दे शुड एग्री. दोनों लोगों का एग्रीमेंट, सहमति होना जरूरी है. दैट इफ वी आर ब्रिंगिंग समथिंग, it is politically active or politically supported. Bureaucratic attitude, cooperation from the government officials, the people, those who are holding the positions, the people, those who are sitting at the government positions, they should be cooperative. They should not deny to new things coming. Organizational competencies. अगर हम किसी भी पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक बॉडी के ऊपर कोई लॉ डाल रहे हैं, कोई रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, वो पब्लिक अथॉरिटी या मैनेजमेंट अपने आप में केपेबल होनी चाहिए. मतलब आपने उसका स्ट्रक्चर, सिस्टम को इस तरीके से बनाया नहीं कि वो लॉ को एक्सेप्ट कर सके, तो उस लॉ का कोई मतलब नहीं है. Administrative feasibility, practical and realistic. Whatever law you are bringing, it has to be realistic. Any changes you are bringing has to be realistic, practical. Imaginary पे कोई काम नहीं करेगा. Proper timing. Introducing reforms at right moment is very important. कोविड के पहले, कोविड के दौरान, नाउ यू कैन सी बहुत सारे न्यूज चल रहे हैं, यू हैव टू कम बैक टू द ऑफिसेस, 90 आवर्स वर्किंग आवर्स, एंड बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है. नाउ अंडरस्टैंड दिस. Why back to the office? Why COVID was a good time for work from home? Now जब लोगों को आदत हो गई है, लोगों को समझ में आ गया है कि घर से भी काम होता है, तो हम ऑफिस क्यों आए? Give us mixed thing. Let me work from the office and some days from the home. So now that is right moment पे, proper timing पे हर तरीके के reforms को introduce करना जरूरी है. Well conceived ideal, clear and logical. Anything you are bringing. If you are introducing complete work from house or complete work from home or office, why? जब घर से काम हो सकता है, why I should take the burden of the traveling? Why should? If I can sit at home, why should I come to the office? Give me the reason. Proper implementation, execution of the effective execution has to be there, and national culture, align the reforms with social values. Nothing should be opposite to Indian culture or rather our value system. हम कोई भी इंडियन वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकते. राइट? मूविंग टू द नेक्स्ट. व्हाट काइंड ऑफ रोल दिस पब्लिक एंटरप्राइज प्लेज इन आवर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सी, आज का क्लास जो है ना, बहुत ही बेसिक ओवरव्यू या अंडरस्टैंडिंग है, जो आगे के पॉइंट्स को समझने के लिए आपको समझना बहुत जरूरी है. Am I clear? So, historical background. The role of state in the people's life have been a topic of debate for centuries. Historical background यानी जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि लेजर फेयर था, यानी गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं था, जिसकी वजह से कंप्लीट कंट्रोल विद द एम्प्लॉयर और एक्सप्लॉयटेशन था. गवर्नमेंट का कंट्रोल आना इसलिए जरूरी था बिकॉज वो अपने हिसाब से रूल्स, लॉज लेकर आएगी, और जहां पे एम्प्लॉयर के ऊपर या प्राइवेट कंपनीज के ऊपर एक ऑब्लिगेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगी कि अगर आपको सरवाइव करना है, आपको इंडस्ट्री चलानी है इस कंट्री में, इस देश में, तो ये तो मानना पड़ेगा. सो स्टेट का रोल बहुत बड़ा होता है किसी भी पब्लिक अफेयर्स में. इट हैज अ स्विंग बिटवीन ऑटोक्रेटिक, मर्चेंटलिस्ट स्टेट, डीप गवर्नमेंट कंट्रोल एंड लेजर फेयर, मिनिमल गवर्नमेंट कंट्रोल इंटरफेरेंस. तो हमारा कहाँ दो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं. ठीक है, या तो आप कंप्लीट ऑटोक्रेटिक मॉडल चलाओ, जो कि हमारे गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जहां पे डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड होता है, यानी सरकार ही डिसीजन लेगी, और दूसरी जगह प्राइवेटाइजेशन यानी कंप्लीट लेजर फेयर, कोई गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं है उस सेक्टर में, उस इंडस्ट्री में कोई इंटरफेरेंस नहीं है. ठीक है. अब स्टेट इंटरवेंशन, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट इंटरवेंशन? सी, व्हेन वी टॉक अबाउट वुमेन्स, गवर्नमेंट का इंटरफेयर करना कब जरूरी है? व्हेन वी टॉक अबाउट चिल्ड्रन, चाइल्ड. ठीक है, या फिर किसी भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी. नाउ यू हैव seen that Subhash
का जो न्यूज चल रहा था, दैट suicidal case because of pressure of your what it is called as, ठीक है, आफ्टर मैरिज डाइवोर्स के बाद में जो देते हैं एलिमनी, ठीक है, ही हैव अतुल सुभाष, ही हैज डन अ सुसाइड, और एक और नया केस आया। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं। सी, दिस पीपल हैव फेस्ड अ काइंड ऑफ या फिर जो हमने हमारे जो लॉ बनाए हैं, जो यूजुअली हमारे इंडिया में कंसिडर करते हैं वुमेन ओरिएंटेड है, ठीक है, जब लॉज आए तो वुमेन्स और चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए स्टेट ने इंटरवेन किया, इंटरफियर किया और लॉज लेकर आए कि वुमेन्स का और चाइल्ड का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी मैटरनिटी हो गई, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो गया, या हमारा चाइल्ड लेबर एक्ट हो गया। ये लॉस क्यों किए थे गवर्नमेंट ने? कि अगर आप एक इंडस्ट्री हैं तो आप मेक श्योर करेंगे चाइल्ड और वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करेंगे। इसी तरीके से जो हमारे फैक्ट्रीज एक्ट है उसके अंदर वर्किंग आवर्स को लिमिटेड किया, क्यों? एडल्ट का भी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। तो जब किसी भी वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को डोमिनेट किया जाता है, उसमें स्टेट इंटरवेंशन यानी स्टेट का इंटरवेन करना जरूरी है। जैसे अब ये लॉ, जो भी हमारे लॉज हैं, हिंदू लॉज हैं, एलिमनी से रिलेटेड हो गया, डाइवोर्स से रिलेटेड है, somewhere it is now people are saying it is women. I am not the one to comment on those, but to give you the example, women oriented, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे हमें अब सरकार को यहाँ पे इंटरवेन करना पड़ेगा, ठीक है, कि उनको ये रिफॉर्म्स चेंजेस लाने पड़ेंगे कि ये वन साइडेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो गवर्नमेंट शुड इंटरवेन एंड इट इज नेसेसरी। किस तरीके से इंटरवेन कर सकती है? रेगुलेटरी एंड पार्टिसिपेटरी। रेगुलेटरी यानी डायरेक्टली रूल्स और लॉ बना दिए कि ये लॉज हैं, ये रूल्स हैं, अब इनके ऊपर इंडस्ट्रीज क्या करेगी? काम करेगी, मानेगी, बाइंडिंग है, फॉलो ही करने पड़ेंगे। या पार्टिसिपेटरी का मतलब होता है जहां पे वो खुद एंटरप्राइज एंटर कर रही है, पार्टिसिपेट करके डिसाइड कर रही है, इन्वॉल्व करके सामने खुद अपने पॉइंट्स को रख रही है, व्यू पॉइंट्स को रख रही है और पार्टिसिपेट कर रही है। Then emergence of public sector in 20th century we saw a rise of public enterprise। जैसे मैंने आपको बताया 19th में तो प्राइवेटाइजेशन था, आजादी के बाद में इट्स ऑलमोस्ट 20th सेंचुरी वाज द टाइम जहां गवर्नमेंट यानी पब्लिक एंटरप्राइज की ग्रो हुई। इकोनॉमिक पावर कंसंट्रेशन इन फ्यू हैंड वाज देयर, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल था। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी भी इंक्रीज हुआ। द स्टेट, अब गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया। सोशलिज्म, कमांड इकोनॉमीज एंड सेंट्रलाइज प्लानिंग, ये क्या है इसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए इसको याद रखेंगे। ग्रोथ एंड डिक्लाइन, पब्लिक एंटरप्राइज ग्रू इन बोथ इंडस्ट्रियलाइज एंड डेवलपिंग कंट्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। हमने ग्रो भी देखी है, फॉल भी देखा। By late 1970s, it was evident state power has become excessive. Resources were inefficiently used. See, anything which is excessive is always harmful. अगर आप सारा ही गवर्नमेंट को दे देंगे, अथॉरिटी की पूरी गवर्नमेंट को दे देंगे, या फिर अगर आप ये कहो हमारी गवर्नमेंट हर साल वही आ रही है, चेंजेस नहीं हो रही है, तो लोगों को पता है सरकार तो बदलनी नहीं है, कितना भी घपला कर लो। तो सरकार का बदलना भी जरूरी है in order to avoid that autocratic। बहुत चीजें जरूरी होती है समय के साथ बदलना, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर अगर आप किसी को देते हैं दैट इज वेरी डेंजरस। एब्सोल्यूट पावर सेज कि आपको देखने वाला कोई नहीं। सो व्हेन यू हैव एक्सेसिव एब्सोल्यूट पावर इट डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग। रिसोर्सेस वुड बी अननेसेसरीली यूज्ड, अननेसेसरीली लोग करेंगे, प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी। दिस लेड्स टू द स्क्रूटिनी एंड रिफॉर्म्स, एंड इसी के बेसिस पे फिर स्क्रूटिनी होती है, रिफॉर्म्स आते हैं। पब्लिक सेक्टर स्पेशली विद एविडेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसलिए फिर हम फिर से पब्लिक सेक्टर से ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन पे आए, प्राइवेट को डाला। इकोनॉमिक मॉडल्स, सो व्हेन देन वी केम अप डिफरेंट मॉडल्स। हिस्टोरिकल इवेंट्स लाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th and 19th century and colonial rule left many countries underdeveloped। जैसे हमारा इंडिया, जैसे ही colonial rule ब्रिटिश went away, we were an underdeveloped country, poor country। Awareness of economic disparities grew, need of economic development। Two economic ideologies, capitalism and socialism, हम इनको भी पढ़ेंगे, इनका मतलब क्या होता है। मॉडल्स
ऑफ इकोनॉमिक सोसाइटी के अंदर में, ठीक है ना। ये था हमारा आज का इंट्रोडक्टरी पार्ट, types of public enterprise, models of public economic growth. We will be doing in our next class. Clear? Any question? Any query? इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आज के सेशन में नहीं ले रही हूं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। कैपिटलिज्म सोसाइटी क्या है, ठीक है। हम ना ये ट्रेड यूनियन थ्योरीज के अंदर भी पढ़ते हैं, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, सोशलिस्ट सोसाइटी, तो इनको जरूर समझना जरूरी है। कैपिटलिज्म क्या था, मर्चेंटलिज्म, लेजर फेयर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। सोशलिज्म क्या है, ट्रेड यूनियन से भी रिलेटेड है, इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड है, तो इनका मीनिंग समझना जरूरी है। काइनेसन इकोनॉमिक्स कई बार पूछा जाता है, मार्क्स की थ्योरी तो बहुत बार पूछी जाती है, तो ये थ्योरीज हैं क्या, ठीक है। विल डू इट इन टुमारो सेशन। So thank you everyone for being there, and we would be meeting in our next class covering this complete few introductory topics. Thank you.